مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے جس نے ہمیں کہا کہ ہم زمین کے نمک ہیں، اور ہمیشہ ہمارا جس طرح کھانے کا مزہ نہیں ہوتا، کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں نمک نہیں ہوگا اور ہم بھی مزیدار نہیں ہوں گے۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہ جو نمک ہے ہماری زندگیوں میں ہوتا رہے، ہم بھی ایسے ہی ہوں جیسا ہمارا خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ جس طرح ہم اپنا من پسند کھانا کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، خداوند بھی ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 8ویں آیات میں یوں لکھا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے کہ جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب ایک معذور انسان کو، آدمی کو، چار لوگ چارپائی پر لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دروازوں پہ کہیں بھی جگہ نہیں، اتنا رش ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اوپر سے چھت اکھاڑ کے نہ وہاں چارپائی کو لٹکا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ آدمی اکیلا نہیں تھا، وہ کب سے انتظار کرتا ہوگا کہ کہاں یسوع آئے گا۔ اس کا ایمان تھا، اور پھر اس کا ایمان تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، اور چار لوگ اس کی مدد کریں گے، ایماندار ہوں گے، ایمان میں ہوں گے تو اس کو وہاں تک لے کے جائیں گے۔ تو پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 یا 4 اکٹھے ہو کے مل کر میرے نام کو پکاریں گے وہاں میں حاضر ہو جاؤں گا، اور خدا وعدوں کا سچا خدا حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چارپائی پر، اگر ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2:5 تک ہے کہ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر 4 آدمی اٹھا کر لے کر آئے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے اوپر سے چھت کھول دی اور اس کو چارپائی کو لٹکا دیا، اور خداوند نے جب دیکھا یسوع نے کہ ان کا ایمان دیکھ کر خداوند نے اس اپاہج آدمی کو جو معذور تھا اسے کہا اٹھ، کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ معاف ہوئے، مطلب گناہوں ہی کے وسیلے سے بیماریاں، تکلیفیں، دکھ ہوتے ہیں۔ گناہ جب ہوتا ہے جب لوگ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس کی شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موسیٰ کی شریعت میں سکھایا گیا تھا کہ گناہ اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ کفارے کے طور پر بکرے قربانیاں دی جائیں گی تو گناہ دور ہو جائے گا۔ اگر ہم ابار 16 باب اس کی 1 سے 2 پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح گناہوں کا کفارے عطا کیے جاتے تھے۔ پریز دا لارڈ۔ یوم کفارے اگر ہم دیکھیں، پہلی آیات میں لکھا ہے کہ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے مر گئے۔ جب وہ خدا کی مذبح پہ آئے تو مر گئے۔ پہلے زمانے میں دیکھا ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہیکل میں وہی لوگ جاتے تھے جن کی کوڑا نکلتا تھا یا اس لائق ہوتے تھے۔ عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی، کہیں نہیں ہوتے تھے جو جاتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، انسان کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اس لیے جب یسوع نے اس آدمی سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو مولم جو تھے وہ سخت ناراض ہوئے، اور ان کا خیال تھا کہ یسوع جو ہے وہ خدا کی پرواہ نہیں کر رہا، تنظیم نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے یہ تو خود خدا بن کر ہمارے لیے ایک نجات بن کر دنیا میں آئے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ مگر جو بعض فقیہ اور جو وہاں کے بڑے مولم بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس لیے یسوع نے اس معذور سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یسوع جس بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا، تھوڑے ایسا ہوا کہ خداوند دیکھ جا رہا تھا اور شہر کے قریب، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 12-14 میں دیکھیں، جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔
उसे देखकर खुदावन को तरस आया। खुदा ने जब उस औरत बेवा को देखा, वो रो रही होगी, बहुत चिल्ला रही होगी, खुदा को उसे बड़ा तरस आया। उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को जो छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो उठ खड़ा हुआ। इसी में 16-17 में देखें, और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद कर कर कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदा और तमाम इर्द-गिर्द में फैल गई कि इतना बड़ा मौज़ा हुआ है। और फिर अगर हम मत्ती की अंजील 21 बाब उसके 11 में देखें, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरिया का नबी यस्सु है, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह अगर हम मरकस की अंजील 14 बाब और 4 बाब उसकी 37 और 38 में देखेंगे, जब वो आंधी चल रही थी, कश्ती में यीशु सो रहे थे, तो शागिर्दों ने यीशु को उठाया, और यीशु ने उठकर पानी को डांटा और पानी साकन हो गया। और लोग हैरान हो गए कि ये कौन है जिसका पानी और हवा भी हुक्म मानते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह खुदावन के पास जो इख्तियार था, खुदावन ने अपने शागिर्दों को बुलाया, क्योंकि खुदावन ने मत्ती 28-18 में कहा, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड। और उसने फिर अपने 12 शागिर्दों को जो उसने मुकर्रर किए थे, जो अपनी कलीसिया बनाई थी, उनसे कहा और उनको भेजा, और उनको ये इख्तियार दिया कि वो, अगर हम मरकस की अंजील उसका 6 बाब उसकी 7-8 में देखें, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 कर भेजना शुरू किया, और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, और हुक्म देकर कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमर बंद में पैसे, कुछ ना लो, और जाकर अपनी ईमानदारी से खुदा के उस कलाम को पूरा करो जो खुदा ने दिया है। और खुदा ने कहा था कि जो जहाँ जाओ, जिस घर में जाओ, जो कुछ तुम्हें मिले उसे खाओ और उस घर के लिए बरकत चाहो, प्रेज द लॉर्ड। और आज वो इख्तियार हम सबको दिया गया है। खुदा ने कहा देखो मैं तुमको इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पे गालिब आ जाओ। और हम देखते हैं कि आज भी खुदा की हजूरी आ जाती, जहाँ भी आप दुआ करते हैं खुदा खुद मौजूद हो जाता है। वो वादों के साथ होता है और उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे बरहक हैं, अटल हैं। आजमा कर देख लें, चख के देख लें कि जहाँ रूह और सच्चाई से इबादत होती है, जहाँ रूह और सच्चाई से खुदा का नाम लिया जाता है, खुदा खुद मौजूद हो जाता है। खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा आज भी मौज़ात कर रहा है। अब देखें पूरे, हम देखते हैं हर जगह जहाँ भी खुदा की दुआ होती है, जहाँ भी मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग बीमार चंगे किए जाते हैं। बदरूहें जहाँ खुदा आ जाता है, खुद वैसे ही चीखती चलाती हैं और चली जाती हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और बरहक है। इसी तरह खुदा कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर कभी सज़ा का हुक्म नहीं होगा, उसके पास कभी मौत नहीं आएगी। वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ अबदी ज़िंदगी है, जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ आग नहीं होगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी होगी। वहाँ सिर्फ कदूस कदूस के नारे लगेंगे, वहाँ सिर्फ खुदा की सताइश होती रहेगी, उसके फरिश्ते वहाँ पर गाते रहेंगे। खुदा हमारे बहुत नज़दीक है। अगर हम देखें कि खुदा के नज़दीक जाएंगे तो वो हमारे नज़दीक आएगा। इसी तरह रोमियो 10 बाब 8 में कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तू नजात पाएगा। हर तरह की नजात, हर तरह की जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, हर तरह की नजात सिर्फ यीशु नाम में है। जहां हम यीशु नाम ले लेते हैं, जब हम यीशु को पुकार लेते हैं तो यीशु मौजूद होता है। और आज का जिंदा कलाम हमें यही सिखा रहा है। आज हम यही सीख रहे हैं कि जब खुदा की हजूरी होगी तो लोग जानेंगे, लोग डरेंगे, लोग खौफ खाएंगे और तमजीद करेंगे कि वाकई वही जिंदा खुदावंद खुदा है जिसने हम सब को इख्तियार बख्शा
बख्शा है, उस इख्तियार को हमने सिर्फ क्या करना है, लेना है और इस्तेमाल करना है। जब बच्चे ट्रेनिंग में, किसी ट्रेनिंग में भी जाते हैं, जो भी जॉब करने जाते हैं, अगर डॉक्टरों की ट्रेनिंग करते हैं तो जब वो ट्रेनिंग कर चुके होते हैं तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं, उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि जाओ अब प्रैक्टिकल लाइफ जियो। इसी तरह जब हम खुदा में चलते हैं तो खुदा हमें इन सारे इख्तियारों को दे देता है, जाओ करो और उसके नाम को जलाल दो। इसी तरह आज हम सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदा बाप सब इस कलाम को लें और खुदा के नाम को जलाल दे। सिर्फ इन बदनों से हमारे यस्सु नाम को जलाल मिले, क्योंकि यस्सु ही ने हमें जिंदा रखा है, यस्सु ही के वसीले से आज हम आज़ाद हैं, यस्सु ही के वसीले से हमारी ज़िंदगियां बख्शी गई और हमें कफ़ारा दिया गया। हम उस कफ़ारे के लिए यस्सु का शुक्र करते हैं और उसके नाम को लेते हैं, क्योंकि आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया, यस्सु नाम। चाहे कोई भी मुश्किल हो, चाहे कोई भी दुख हो, हमने सिर्फ यस्सु नाम को पुकारना है और यस्सु आ जाएगा, वो हमारी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ यस्सु नाम को जपते रहना है। उसके आ जाने से ज़िंदगियां, हालात बदली हो जाते हैं, उसके आने से इत्मीनान हो जाता है, उसके आने से पानी, हवा, हर एक चीज़ उसके ताबे है, उसका हुक्म मानती हैं। आज वो इख्तियार मेरे और आपके पास भी है। हमें उन इख्तियारों को लेना है और इस्तेमाल करना है यस्सु के नाम से, क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। हमने सिर्फ उसका नाम लेना है और करने वाला वो खुद है, वही करेगा और वही करता रहेगा और करेगा यस्सु के नाम से। आमीन। खुदा बाप हम सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करती हूँ बाप जी, सब के लिए वो कुदरत को, वो कुव्वत को, उन सारे हथियारों को, उन सारे इख्तियारों को लेते हैं जो खुदा ने हम सब को दिए हैं। उसने हमें नाम लेके पुकारा है और उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है। जाओ और मेरे नाम से लोगों को बचाओ और बथेरों को खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाओ। खुदा बाप हम सब इस हथियार को लेते हैं। खुदा बाप हर घर के लिए खुदा जी अपने हाथों को बुलंद करते कि हर घर में नजात आए, हर घर में खुदा जी ये हथियार इख्तियार हो, ताकि आपके नाम को जलाल मिले यस्सु के नाम से। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।